السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ناظرین، الحمدللہ، رب کریم کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ رمضان کے پیارے مہینے میں ہمارا پیارا قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مہینے میں ہمیں نہ صرف اس کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے، بلکہ اپنی تلاوت کو صحیح کرنے پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اور اس کی فضیلت کے حاصل ہونے کا دار و مدار اس کو صحیح اور تجوید کے ساتھ پڑھنے پر ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم تلاوت کی برکتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بلند درجات رکھ دیے جاتے ہیں۔ تجوید کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 مخارج الحروف، نمبر 2 صفات الحروف، اور نمبر 3 تجوید کے قاعدے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام الریحان میں الحمدللہ تجوید کے قاعدے اور مخارج سیکھے تھے۔ اسی طرح ہم اس رمضان میں بھی الریحان سیریز کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دے کر لائے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کو عربی کے 29 حروف تہجی کے تلفظ، ان کے مخرج اور صفات سکھائیں گے۔ ہم نے اس سیریز میں کوشش کی ہے کہ عربی کے مشکل ناموں کی بجائے آپ کو عام زبان میں ساری بات سمجھا دی جائے، تاکہ آپ کو مخارج سیکھنے میں آسانی ہو اور قرآن پاک آپ صحیح طور پر پڑھ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام نمبر 1 کی طرف۔ عربی کے حروف تہجی۔ عربی کے 29 حروف تہجی ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ ہے حروف تہجی عربک میں جو قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے۔ حروف کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 1 حرف کا مخرج، جو ہم حرف پڑھ رہے ہیں اس کا مخرج جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا ہے حرف کی صفات۔ ہر جو حرف ہے وہ اپنی مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے مخرج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی صفات کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں حرف مخرج جو ہے، حرف کا مخرج، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، اور مخارج کا مطلب ہے مخرج کی جمع۔ تو جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور حرف کی صفات کیا ہیں؟ جیسے حرف موٹا بھی ہو سکتا ہے
اور बारीक भी पढ़ा जा सकता है। एक हर्फ में हवा होती है और दूसरे हर्फ में हवा नहीं होती। एक हर्फ में नरमी होती है फूलों के जैसे, और दूसरा हर्फ बहुत शदीद होता है, कुव्वत वाला होता है। एक हर्फ को निकालने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरा कोई हर्फ होता है जिसको निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये जो है ये सब हरूफ की सिफात हैं। तो देखते हैं मखारिज की तादाद कितनी है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 मखारिज। इन 5 मखारिज को मेन मखारिज या मखारिज आम्मा भी कहा जाता है। नंबर 1 है हल्क, नंबर 2 है लिसान, नंबर 3 शफतैन, नंबर 4 जोफे दहन और नंबर 5 है खैशूम। तो देखते हैं मखरिज नंबर 1 जो है जोफे दहन। उर्दू में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो ये है मुंह और गले का खाली हिस्सा। यहाँ पर आपको जो सब्ज रंग में और जो नीचे पर्पल से कलर में या ब्लू कलर में नजर आ रहा है वो जौफे दहन है। जो खाली हिस्सा होता है ना हमारे गले और मुंह का जुबान के ऊपर और तालू के बीच में, उसको जौफे दहन कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे बाद में कि यहाँ से कोई हर्फ नहीं निकलता, बल्कि अलिफ, वाव और मदिया का सिर्फ जो आवाज है उसका मखरिज है ये। फिर देखते हैं नंबर 2 मखरिज नाक, खैशूम। खैशूम जो है ये दरअसल नाक के बांसे को कहते हैं और यहाँ से 2 हरूफ नून और मीम का गुन्ना निकलता है। कौन से 2 हरूफ? नून एंड मीम का गुन्ना। इंशाल्लाह हम इन सब के बारे में तफसील से बाद में देखेंगे। मखरिज नंबर 3 है हल्क, मतलब गला। गला जो है इससे 6 हरूफ निकलते हैं और इसके अंदर 3 मखारिज हैं। मखरज नंबर 4 जुबान, और अरबिक में इसको लिसान कहते हैं, उर्दू में इसको जुबान कहा जाता है और ये बहुत ही अहम मखरिज है और इससे सबसे ज्यादा इसमें मखारिज हैं और सबसे ज्यादा हरूफ इसी में से निकलते हैं। मखरज नंबर 5 है शफतैन, 2 होंठ, ऊपर और नीचे दोनों होंठ, उनको शफतैन कहते हैं। तैन या तान अरबिक में 2 चीजों को कहा जाता है। अरबिक में 2 चीजों को इकट्ठा बुलाया जाता है, जैसे हम कहते हैं ना दोनों, लेकिन दोनों जैसे हम कहते हैं वालिदैन, माँ बाप, यहाँ पर जब हम कहते हैं किसी चीज के बारे में, अगर हम कहें कि किताबतैन यानी 2 किताबें, तो इसी तरह से शफतैन जो है वो होंठों को कहा जाता है और 2 होंठ हैं इसलिए उनको शफतैन कहा जाता है। तो यहाँ से 4 हरूफ निकलेंगे और इसकी तफसील भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह। अब देखिए ये जो पिक्चर है इससे आपको सही अंदाजा होगा कि मखारिज कौन कौन से हैं। 5 मखारिज आमा जो हैं उनको देखिए, या देखिए इनको। नंबर 1 जो है आपको नजर आ रहा है ये खैशूम का एरिया है। नंबर 2 ये ग्रीन और नीचे जो ब्लू का एरिया है ये नीले रंग का या पर्पल कलर का, ये जौफे दहन कहलाता है। और ये तीसरा मखरिज है ये गले का मखरिज है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये ऑरेंज में, ये है जुबान
लिसान का हिस्सा या मखरज, और ये दो होंठ जो हैं ये पांचवा मखरज है जिसको शफातेन कहा जाता है। तो इनके अंदर जो है और मखरज हैं छोटे छोटे, और वो कितने हैं? कुल मिला के मखरज बनते हैं 17, लेकिन 5 बड़े मखरज यही हैं और इनसे 29 हरूफ तहज्जी निकलते हैं। और तफसील में अगर हम देखें तो अल खैशूम नाक की खाली जगह, इससे नून और मीम पे जब शद्दा होता है मुशद्ददा, उसका गुन्ना जो है वो यहाँ से निकलता है। वैसे मीम की खुद की जो सिफ्त में भी गुन्ना है वो गुन्ना भी नाक के बांध से यानी यहीं से निकलता है। फिर उसके बाद नंबर 2 देखते हैं अल जौफ, मुंह और गर्दन का, गले का खाली हिस्सा। उससे देखिए अलिफ मद, वाव मद और या मद निकलते हैं। फिर उसके बाद आता है गला, अल हल्क। उसमें देखें 3 हिस्से हैं, 3 मखारिज, उनसे 6 हरूफ निकलते हैं, गैन खा, आइन हा और हमजा हा। और ये जो है ये दो दो करके हरूफ जो हैं वो 3 मखारिज से अलग अलग निकलते हैं। आइए देखते हैं जुबान के मखरज से कितने हरूफ निकलते हैं। जुबान में जैसे कि हमने जाना कि 10 मखरज हैं और उनसे 18 हरूफ निकलते हैं। देखिए काफ और काफ ये एक हिस्से से निकलते हैं लेकिन दोनों के मखरज अलहदा अलहदा हैं। रा नून जो है ये एक ही मखरज से निकलेंगे नहीं, रा का मखरज अलहदा होगा, नून का मखरज अलहदा होगा। फिर बाद और लाम आते हैं, या शीन जीम, व दाल सा, ता दाल ता, साद जा सीन। ये 3 आप सेट देखेंगे कि एक ही मखरज से निकलते हैं, यानी या शीन जीम का एक मखरज होगा, व दाल सा का एक मखरज होगा, ता दाल ता का एक मखरज होगा और साद जा सीन का एक मखरज होगा। तीनों का एक मखरज है। सुभान अल्लाह, आप देखिएगा निकलते ये एक ही मखरज से हैं, लेकिन क्या चीज इनको अलहदा अलहदा करती है? इनकी सिफात। जैसे कि आप देखें काफ है, काफ का मखरज और काफ का मखरज अलहदा अलहदा है। काफ भारी है, काफ लाइट है, बारीक पड़ा जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे ये वा, वाल, सा एक मखरज, लेकिन आपको अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा है ना, वा, वाल, सा, अल, अज, अस। तो इनको भी जो इनकी जो सिफात हैं वो इनको अलग अलग करती हैं। तो इसीलिए आपको याद है मैंने आपको पहले कहा था कि हरूफ के साथ में उनकी सिफात जानना बहुत ही जरूरी है। वाह जो है देखिए ये भारी पड़ा जाता है, मोटा पड़ा जाता है। जाल लाइट पड़ा जाता है। सा बड़ा तो लाइट जाता है लेकिन उसमें हवा निकलती है। सा सा और क्या होता है? जाल और वा में हवा नहीं निकलती, इसलिए ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। वाह जो है ये भारी है और दाल सा बारीक पड़े जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इंशाअल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह
अपने पूरे प्रोग्राम में हम इन अल्फाज़ों की इन हरूफ की, इनके मखरिज की, इनके सिफ़ात की हम सब तफ़सील को जानेंगे और फिर हमें इनके बारे में पता जब चल जाएगा तो हम इनको अदा भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो अपना आखिरी मखरिज देखते हैं। आखिरी मखरिज है शफ़तैन। शफ़तैन जो है इसमें 2 मखरिज हैं, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ। और इन दोनों होंठों से 4 हरूफ निकलते हैं जो है बा, वाव, मीम और फा। आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में हम और तफसील के साथ मखारिज के हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।